Hello everyone. Today I am with second video of types of IPR in India. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of intellectual property rights. Student, in my previous video I taught that intellectual property is categorized in two categories. One is industrial property and another is copyright. In that video I taught you about copyright thoroughly, and in this video I will teach you some more intellectual property rights. So first intellectual property right which I am going to teach you in this video is trademark. So student, a trademark is any word, name or symbol or their combination that let us identify and differentiate the goods and services of one company from another. So student, trademark क्या है? एक word है, एक name है या एक symbol है और इन तीनों का कॉम्बिनेशन है जो हेल्प करता है हमें कंपनी के गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने में और ईजिली डिफ्रेंशिएट करने में कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. Basically, students, trademark helps in distinguishing similar products in market from its competitors. Student, if you see in the world of soft drink, there are so many companies who are making soft drink. We have Coca-Cola, we have Pepsi, we have Mountain Dew, we have so many companies who are making soft drink. But with the help of their trademark, you can easily recognize that particular soft drink is of Coca-Cola or Pepsi or Mountain Dew. So student, basically trademark जो है वो help करते हैं हमें सिमिलर प्रोडक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने में. स्टूडेंट, ट्रेडमार्क कैन लेट यू नो मैनी थिंग्स अबाउट अ कंपनीज रेप्यूटेशन, गुडविल, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मोर ओवर, अ कॉम्पिटिटर कैन नॉट यूज द सेम और सिमिलर ट्रेडमार्क टू सेल देयर प्रोडक्ट इन मार्केट. सो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपका ट्रेडमार्क या आपसे मिलता जुलता ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और अगर वो ऐसा करते हैं देन इट इज़ गोइंग टू फॉल अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेप्टिव सिमिलैरिटी विच मे बी डिफाइंड एज फोनेटिक, स्ट्रक्चरल एंड विजुअल सिमिलैरिटी. ओके student, we have so many trademarks available in the world for every product. If you see products regarding sneakers, we have so many brands who are selling sneakers. We have Adidas, we have Nike, we have so many brands, but you can easily recognize a particular sneaker with their trademarks. For example, if you see this particular symbol on your sneaker, you can easily recognize that this particular sneaker belongs to Nike company. Okay students, the registration of trademark is not mandatory under the Trademark Act 1999, but registration of trademark helps establish exclusive right over the marks. सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको कॉपीराइट में बताया था कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर आप कराते हैं रजिस्ट्रेशन तो ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है. स्टूडेंट, ऐसा ही ट्रेडमार्क में भी है. ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं देन यू गेट सम बेनिफिट्स, यू गेट एक्सक्लूसिव राइट ओवर योर ट्रेडमार्क. और अगर आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना होता है देन यू विल रजिस्टर इट अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999. सो स्टूडेंट, जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है देन इट गेट द साइन ऑफ आर. आपने बहुत से ऐसे ब्रांड्स देखे होंगे, ऐसे लोगोज देखे होंगे जिसमें इस तरीके से आर लिखा होता है. दिस मीन्स दैट योर ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड. बट कुछ ऐसे भी ट्रेडमार्क होते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड होते हैं, बट उनके आगे ऐसे करके TM लिखा होता है. दीज आर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स. ओके, with this we have two categories of trademark. One is conventional trademark and another is non-conventional trademark. स्टूडेंट, कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स वो ट्रेडमार्क्स होते हैं जो हमेशा से ही ट्रेडमार्क की तरह यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, वर्ड्स हो गए, कलर हो गए, कॉम्बिनेशन हो गया, लेबल हो गया, लोगो हो गया, पैकेजिंग हो गया, शेप ऑफ गुड्स हो गया. ये सारी क्या है? ये वो ट्रेडमार्क्स हैं जो हमेशा से ट्रेडमार्क की तरह यूज़ किए जाते हैं. किसी का नाम हो गया, किसी का वर्ड हो गया, या आपके कलर कॉम्बिनेशन हो गया. फॉर एग्जांपल, जब आप डोमिनोज में पिज़्ज़ा लेने जाते हैं तो वहाँ पे आप ब्लू और रेड का साइन देखते हैं, ब्लू और रेड ब्लॉक्स बने होते हैं, देन यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज दैट दिस पर्टिकुलर पिज़्ज़ा बिलोंग्स टू डोमिनोज कंपनी. बहुत से लेबल्स देखते हैं, लोगोज देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं प्रोडक्ट्स की, शेप जो है गुड्स का उससे भी आप ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पर्टिकुलर ट्रेडमार्क्स के रिगार्डिंग. सो ये बेसिकली वो ट्रेडमार्क्स हैं जो कि हमेशा से ट्रेडमार्क की तरह यूज़ किए जाते हैं. वी हैव सेकेंड कैटेगरी ऑफ ट्रेडमार्क दैट इज नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क. सो स्टूडेंट, ये वो कैटेगरी है ट्रेडमार्क की जो पहले कभी भी
ट्रेडमार्क की तरह कंसीडर नहीं की जाती थी। पहले इनको अलग ट्रेडमार्क नहीं दिया जाता था, बट स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये जो पर्टिकुलर चीज़ें थी वो ट्रेडमार्क की तरह रिकॉग्नाइज करने लगी। जैसे कि आपका साउंड मार्क हो गया, डायनेमिक मार्क हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो कि आप पहले ट्रेडमार्क की तरह नहीं यूज़ की जाती थी, बट अब ये ट्रेडमार्क की कैटेगरी में फॉल करती हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। विद दिस वी हैव another type of intellectual property right, that is patent. So student, in my previous video I taught that अगर आप कोई inventions करते हैं तो basically आप उसके लिए क्या लेते हैं, पेटेंट लेते हैं, जिससे कि आपकी चीज़ें कोई और आपके inventions कोई कॉपी ना कर पाए। ओके, so student, a patent is a type of IPR which protects the scientific inventions, that is product and process, which shows technical advancement over the already known प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, पेटेंट क्या है? एक टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो प्रोटेक्ट करता है क्या, साइंटिफिक इन्वेंशंस। ये इन्वेंशंस कुछ भी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट से भी रिलेटेड होता है, ये प्रोसेस से भी रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई मेडिसिन बनाई है किसी एलिमेंट को क्योर करने के लिए, तो आप क्या लेते हो, उसका पेटेंट लेते हो। आपने एक नया इन्वेंशन किया और ऐसा इन्वेंशन पहले कभी वर्ल्ड में नहीं हुआ होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, तो क्या आप लेते हो, उसका पेटेंट लेते हो। या अगर आपने कोई पर्टिकुलर मेडिसिन पहले ही बन चुकी है, बट उस पर्टिकुलर मेडिसिन को बनने में 40 to 50 डेज़ लगते हैं, बट आपने एक नया तरीका निकाला है, एक नया प्रोसेस, एक नया मेथड निकाला है उस पर्टिकुलर मेडिसिन को 20 डेज़ में बनाने के लिए, तो ये आप पेटेंट करा सकते हो, क्योंकि आपने एक नया तरीका निकाला है, नया मेथड निकाला है उस पर्टिकुलर मेडिसिन को जल्दी बनाने में। ओके, सो पेटेंट आपका वो टाइप आईपीआर है जो कि प्रोटेक्ट करता है साइंटिफिक इन्वेंशंस को, विच शोज टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट्स। ओके, सो स्टूडेंट, अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट विच प्रोवाइड्स द एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सक्लूड ऑल अदर्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग द इन्वेंशंस। सो पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि गवर्नमेंट देती है, जो आपको आपके इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि आपका जो इन्वेंशन है, आपका जो वर्क है, वो कोई और यूज़ ना करे, कोई उसको और फिर से ना बनाए। और प्लस आप अगर किसी और को वो पर्टिकुलर इन्वेंशन यूज़ करना है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो उसके लिए वो आपसे परमिशन लेता है। ओके, पेटेंट कैन ओनली बी फाइल टू गेट राइट्स ओवर एन इन्वेंशन एंड नॉट डिस्कवरी। सो स्टूडेंट, पेटेंट जो है वो आपको राइट देता है सिर्फ इन्वेंशंस पे, डिस्कवरी पे नहीं। अब आप लोग कंफ्यूज हो होंगे कि इन्वेंशन, डिस्कवरी दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बट स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने ये देखा कि एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे गिर रहा था, और वहाँ उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि ये जो पेड़ से वो नीचे गिर रहा है एप्पल, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और वहाँ उन्होंने इसको डिस्कवर किया कि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से पेड़ से एप्पल नीचे गिर रहा था। सो यहाँ पे उन्होंने डिस्कवरी किया, उन्होंने कोई चीज़ नई इन्वेंट नहीं की है। ओके, ऐसे ही आपके ऑन द अदर हैंड आपके जो इन्वेंशंस होते हैं उसके लिए पेटेंट जो है वो फाइल कराया जाता है। इन्वेंशंस जैसे कि आपके एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फ़ोन इन्वेंट किया था, उन्होंने कोई एक ऐसी चीज़ बनाई थी जो कि पहले वर्ल्ड में कभी नहीं बनी थी, उन्होंने एक नई चीज़ इन्वेंट की थी। ओके, ये उन्होंने खुद बनाया था, सो उसके लिए पेटेंट लिया होगा। सो पेटेंट जो है बेसिकली उन चीज़ों के लिए फ़ाइल किया जाता है जो कि इन्वेंशंस होते हैं और डिस्कवरी नहीं होते हैं। Student, inventions are those when we use our ability to create something novel, something new, something unique which came into existence, whereas discovery is a process of highlighting existence of an already existing thing. Okay, so student, I hope आपको clear हो गया हो पेटेंट क्या होता है। With this
वी हैव another concept that what can be patented, क्या क्या चीज़ें हम पेटेंट करा सकते हैं. हम हर एक चीज़ पेटेंट नहीं करा सकते हैं, हम कुछ रिकॉग्नाइज ही चीज़ें पेटेंट करा सकते हैं. जैसा हमने आपको पहले बताया कि आप जब पेटेंट लेते हो तो वो इन्वेंशंस पे मिलता है, डिस्कवरी पे नहीं मिलता है. और ये जो इन्वेंशंस हैं, कौन से इन्वेंशंस जो हैं वो पेटेंटेबल होते हैं. सो द इन्वेंशंस मस्ट बी न्यू, नोवेल होने चाहिए, न्यू होने चाहिए. डैट इज नॉट इन पब्लिक डोमेन इन एनी फॉर्म बिफोर द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन. जब आप अपना पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करें उससे पहले आपका वो इन्वेंशन जो है वो किसी और ने ना किया हो. ओके, वो न्यू हो, बिल्कुल नया हो. एंड अनदर is it must be non-obvious to any person who is skilled in the relevant field of technology. और ये नॉन ऑब्वियस हो, मतलब हर एक चीज़ वेरी ऑब्वियस वाली ना हो, मतलब नॉन ऑब्वियस हो. आपका कोई चीज़ एक ऐसी हो जो जिसके बारे में लोगों को ना पता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी खाना बनाते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि इसमें नमक डालो तो थोड़ा नमकीन टेस्ट आएगा, या अगर हम कोई मीठा बनाते हैं और उसमें हम शक्कर डालते हैं तो हम ये कहते हैं कि थोड़ा मीठा टेस्ट आएगा, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू नोन. सो पेटेंट जो है वो आपको इन्वेंशंस पे तभी मिलेगा जब आप कोई नॉन ऑब्वियस चीज़ करेंगे जिसके बारे में उस फील्ड में किसी को नहीं पता होगा. ओके. Finally, it must be capable of industrial application, that is capable of being used or manufactured in the industry. So आप जो भी कोई इन्वेंशन अपना पेटेंट कराएंगे वो उन प्रोडक्ट्स के लिए होगा, उन चीज़ों के लिए होगा जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में केपेबल हो. मीन्स आप उसको मैन्युफैक्चर कर सको इंडस्ट्री में, उन सारी चीज़ों के लिए आपको पेटेंट मिलता है. ओके. विद दिस वी हैव some more categories which cannot be patented. So ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पेटेंट नहीं भी कराई जाती हैं, जैसे कि आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो गए. स्टूडेंट्स, आपने बचपन से अभी तक के बहुत ढेर सारे प्रिंसिपल्स देखे होंगे जो कि आपको यूं ही दे दिए जाते हैं. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि न्यूटन ने लॉज दिए हैं आपके, तो उन सारे प्रिंसिपल्स को पेटेंट नहीं कराया जाता है. मोर ओवर, कॉन्ट्रेरी टू वेल इस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉ, कोई भी नेचुरल लॉज होते हैं, अगर मतलब कॉन्ट्रेरी टू वेल इस्टेब्लिश्ड नेचुरल, अगर आपके कोई भी नेचुरल लॉज हैं उनके अगेंस्ट में अगर कुछ भी है तो उनको भी पेटेंट नहीं कराया जाता है. फॉर्मुलेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, अब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज हैं, अगर आपने उनका कोई फॉर्मुलेशन किया है, कोई ऐसी ही थ्योरी है जिसका कोई भी सर पैर नहीं है, ऐसे ही है, बड़ी वियर्ड सी है, सो आप उनको भी पेटेंट नहीं कराते हैं. फ्रिवलस इन्वेंशंस, फ्रिवलस इन्वेंशंस वो इन्वेंशंस होते हैं जो कि किसी यूज़ के नहीं होते हैं. आपने ऐसे ही कुछ बनाया और आपने उसको कहा कि चलिए हम इसको पेटेंट करा लेते, तो आप ऐसे ही किसी भी चीज़ का पेटेंट नहीं ले सकते. प्रीजुडिशियल टू मॉरलिटी और इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, तो आपने अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि मॉरलिटी के अगेंस्ट है या पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट है, इंजूरियस है, तो उन चीज़ों का भी पेटेंट नहीं मिलता है. मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, सो हमने आपको पहले बोला कि पेटेंट जो है वो एक प्रोडक्ट और प्रोसेस के रिगार्डिंग जो है वो आपको दिया जाता है. दिस डजेंट मीन कि आपने अगर कोई एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में कोई नया मेथड आपने निकाला है तो उसके लिए आपको पेटेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, एडमिक्सचर्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, इंक्रीमेंटल इन्वेंशंस, सो इन सारी चीज़ों के आपको पेटेंट नहीं मिलते हैं. मोर ओवर, इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी भी आपको पेटेंट उसके नहीं मिलते. अगर आपने कोई भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई इन्वेंशन किया हो तो उससे भी रिलेटेड आपको पेटेंट नहीं मिलते हैं अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970. ओके स्टूडेंट, विद दिस वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ पेटेंट इज मोटिव ऑफ पेटेंटिंग. हम पेटेंटिंग बेसिकली कराते क्यों हैं? सबके दिमाग में आ गया होगा, हम बेसिकली पेटेंटिंग इसलिए कराते हैं जिससे कि हम अपने इन्वेंशंस को सेफ गार्ड कर सकें. ओके, हम अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें. सो द पर्पज़ ऑफ पेटेंट इज़ टू इनकरेज इनोवेशंस इन द साइंटिफिक फील्ड. सो पहला पर्पज़ है, पहला मोटिव है पेटेंटिंग कराने का, जिससे कि आप इनकरेज हो सकें इनोवेशंस को लेकर के. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन ने कोई नई चीज़ बनाई है, कोई नया मेथड बनाया है, कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, तो उसको क्या होता है,
उसको रेपुटेशन मिलती है, उसको रिकॉग्निशन मिलता है कि उसने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है, उसने ये पर्टिकुलर मेथड बनाया है, इट इज़ समथिंग वेरी न्यू। सो इसके लिए उसको रिकॉग्निशन मिलता है। सो द पर्पज़ ऑफ पेटेंट इज़ टू इनकरेज इनोवेशंस इन द साइंटिफिक फील्ड। सो आप क्या करते हो, पेटेंट को आप अपनी चीज़ों को, आप अपने इनोवेशंस को पेटेंट कराते हो, जिससे कि दूसरे लोग भी इनकरेज होते हैं नई नई चीज़ें इनोवेट करने में। ओके, moreover a patent grants exclusive right to the inventor for a period of 20 years during which anybody else who wishes to use the patented subject matter needs to seek permission from the patentee by paying certain cost for the commercial use of such an invention। so student, आपको ये जो पेटेंट है वो ग्रांट होता है 20 ईयर्स के लिए। मीन्स अगर आपने आज कोई चीज़ नई बनाई है और उसका आपने पेटेंट लिया है तो ये 20 साल तक ये एक्सक्लूसिव राइट आपके ही पास रहता है कि आपकी परमिशन के बिना आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है या कोई और उसको नहीं बना सकता। मोर ओवर अगर किसी को भी ऐसा कुछ करना होगा तो उससे पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो ये सारी चीज़ें करेगा। मोर ओवर अगर उसको इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है तो वो इसके लिए क्या करेगा, आपको कुछ सर्टेन अमाउंट जो है उस इन्वेंशन के कॉमर्शियल यूज़ का पे करेगा और उसके बाद वो आपसे परमिशन लेके उन सारी चीज़ों को यूज़ करेगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सीकिंग एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द पेटेंटी फॉर अ फी इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। मोर ओवर पेटेंट क्रिएट्स अ टेम्पररी मोनोपोली। आपकी पेटेंट जो भी होता है, अगर आप किसी भी चीज़ का पेटेंट लेते हैं तो वो क्या करता है, एक टेम्पररी मोनोपोली बनाता है। मोनोपोली मीन्स यू हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड नो अदर पर्सन कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग। और अगर उसको किसी को भी वो चीज़ें यूज़ करनी है, वो चीज़ वर्क में लानी है, तो उसके लिए उसे कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है, उसे कुछ ना कुछ आपसे परमिशन लेनी पड़ती है वो सारी चीज़ों के लिए। मोर ओवर यहाँ पे लिखा है ये टेम्पररी है। टेम्पररी इसलिए है क्योंकि ये 20 साल तक के लिए ही होता है। एंड वंस द टर्म ऑफ पेटेंट एक्सपायर्स द इन्वेंशन इज़ इन पब्लिक डोमेन विच मीन्स इट इज़ फ्री फॉर यूज बाय पीपल। और एक बार जब आपका ये पेटेंट का टर्म 20 ईयर्स एक्सपायर हो जाता है, नाउ आपका जो भी इन्वेंशन है वो पब्लिक डोमेन के लिए फ्री हो जाता है। पीपल जो है उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी होती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आपको 2 टाइप के IPRs पढ़ाए हैं, वन इज़ ट्रेडमार्क एंड अनदर इज़ पेटेंट। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, please ask your queries to me. And if you think if my video is helpful to you, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.